Assalamualaikum. Welcome to English Insights with Atif. Today we are going to discuss the most important topic, that is how to read English newspaper headlines. The first and foremost thing that a reader of English newspaper must know that headlines are not complete sentences. They are like complex messages, precise, short, and to the point. The second most important thing is that these headlines are always in present simple tense, even for the past events. For instance, there was a headline in the recent newspaper that Iran responds strike. Now, if you just look at this structure, it means it happened yesterday, but they narrate it in the present simple tense. The third most important point is that drop unnecessary words. Now, what are those unnecessary words? Words like articles, words like helping verbs. You won't find any such words in the headlines. For example, PM meets US delegation. Now, there is no helping verb in this sentence. If we just open this structure grammatically, it would be like the PM has met the US delegation. So there is a no the, there is a no second form, there is a no the PM, no article, no helping verb, no second form, right? So there's a drop of unnecessary word. Simply, PM meets US delegation. So it is just a chunk of those 3, 4, 5 major words that gives the whole context of the details that we are going to read in the newspaper. And the fourth most important point is that subject is removed when it is understood. For example, 10 killed in blast. Now, if you just look at this structure, it is very much understood that 10 are people. Instead of 10 people are killed, 10 people were killed in the blast, 10 killed in the blast. So there's no need of writing people. The fifth most important point is that passive voice is allowed. For example, protest called off. Now this is a passive structure. It means action is more important than who did it. Okay, now look at this headline. Officer among two martyred in South Waziristan operation. यहाँ देखें कि ऑफिसर में से जो 2 ऑफिसर थे वो शहीद हो गए साउथ वजीरिस्तान के ऑपरेशन में. अब देखें कि यहाँ पर लिखा मार्टियर्ड. ये थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब है जो कि हम पैसिव स्ट्रक्चर में लगाते हैं. जिस तरह हमने पढ़ा, यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि किसने शहीद किए, यहाँ पर सिंपल लिखा हो गया तो ये शहीद हो गए. तो दिस इज व्हाट वी कॉल द पैसिव वॉइस. ठीक है, या तो पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर मिलेगी या तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा होगा. एंड द सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट फिगरेटिव लैंग्वेज is used. Figurative language means that language, the language that uses figure of speeches. Now, what are figures of speech? Figures of speeches are actually devices that enrich the language, that bring a sort of effectiveness in the language. For example, Trump pulls on the trigger on Iran. The trigger is actually the metaphor. Metaphor is a direct comparison to dissimilar things. Usually we use trigger for a gun to shoot. But here it is used with the Trump. It means Trump has to finally make a final decision aggressively, either to attack Iran or cancel the nuclear deal. तो इसका मतलब ये बना कि ट्रंप ने आखिरकार एक बोल्ड डिसीजन लिया. The last important point is that punctuation is rarely used, only like comma, a colon or quotative marks. Otherwise, punctuation is not usually used in the headlines. So here's Dawn newspaper headline. You can see it says Trump cajoles Tel Aviv and Tehran into accepting truce. It means Trump ने जो है कैजुअल किया. कैजुअल से मतलब है मनाया Tel Aviv को and Tehran को. Tel Aviv is the capital of Israel and Tehran is capital of Iran. इन दोनों की गवर्नमेंट को मनाया. मीन्स वहाँ से Tel Aviv से नेतन्याहू को मनाया, तेहरान में खोमेनी को मनाया. into accepting मीन्स आमादा किया किस पर? ट्रूस पर. ट्रूस मीन्स सीज फायर पर, जंग बंदी पर. तो यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर इज इन प्रेजेंट सिंपल टेंस. हालांकि ये एक दिन पहले की बात है. नंबर 1 हमने पढ़ा और ये मेजर वही वर्ड्स लिखे हुए. इसमें आपको कोई हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आएगा. यू कांट सी एनी हेल्पिंग वर्ब हियर. यू कैन सी एनी आर्टिकल यूज्ड हियर. ठीक है, यूज किया है और वही स्ट्रक्चर है जिस तरह हमने पॉइंट्स पढ़ी थी. एक और हेडलाइन पढ़ लेते हैं. Iran's calculated response helps US declare peace in Middle East.
ईरान का जो कैलकुलेटेड रेस्पॉन्स था, कैलकुलेटेड रेस्पॉन्स से मुराद उसका सोचा समझा रद्द अमल था। उसने हेल्प किया यूएस को कि वो डिक्लेयर करे, वो अनाउंस करे पीस को। वो पीस की अनाउंस करे किसमें, मिडिल ईस्ट के अंदर। एक हेडलाइन पढ़ लेते हैं। अपोजिशन स्लैम्स ट्रम्प्स नॉमिनेशन फॉर नोबेल पीस प्राइज। अब इसको ज़रा देखें हम, अपोजिशन स्लैम कर रही है। स्लैम करना मीन्स तनकीद करना, स्ट्रॉन्गली कंडेम करना। किस बात पर तनकीद करी? ट्रम्प्स नॉमिनेशन, ट्रम्प की नॉमिनेशन जो थी, किस बात पर नॉमिनेशन? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारी गवर्नमेंट ने, शहबाज शरीफ ने नॉमिनेट किया था ट्रम्प का नाम फॉर द नोबेल पीस प्राइज़, क्योंकि उसने लास्ट मंथ जब हमने देखा कि एस्केलेशन हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वॉर की, तो उस पर ट्रम्प ने एक मीडिएटर का रोल प्ले किया था। तो उसके बिना पर शहबाज शरीफ ने नॉमिनेट किया था ट्रम्प का नाम नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। राइट आफ्टर द नॉमिनेशन ऑफ हिज नेम, व्हाट ट्रम्प डिड, ही स्ट्राइक्ड ऑन अटैक्ड ईरान। तो यहाँ पर देखा जाए तो अपोजिशन का ये तनकीद करना एक बनता है कि अपोजिशन सेज कि ट्रम्प इज़ क्वाइट अनवर्दी पर्सन टू बी नॉमिनेटेड फॉर नोबेल पीस प्राइज़। और हकीकत भी यही है, बिकॉज ही वॉज द मैन बिहाइंड ऑल द गेम जो हुआ था मिडिल ईस्ट में अंदर रिसेंटली। तो these are the headlines. Okay, now this is today's Dawn newspaper headline. It says India rejects SCO document over Pahalgam Sinap. इंडिया ने जो है रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया किसको? एससीओ की डॉक्यूमेंट को। एससीओ की डॉक्यूमेंट से मुराद है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट जो जारी होती है आफ्टर मीटिंग, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की रिसेंटली कल एक दिन पहले से मीटिंग हुई थी, तो उसमें जो बात हुई थी कि पहलगम को उन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया था। जो अटैक हुआ था पहलगम टाउन में अंदर जम्मू कश्मीर के 26 टूरिस्ट मारे गए थे, तो उसको कंसीडरेशन में नहीं लाया गया था, उसको एक्नॉलेज नहीं किया था। तो इस बात पर जो है इंडिया ने पूरी फाइनल स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया, बिकॉज इट वॉज सिनप। ठीक है, क्योंकि वो रिजेक्शन थी एंड सिनप मीन्स रिजेक्ट करना है। उस डॉक्यूमेंट, उस पहलगम की जो अटैक तो उसको रिजेक्ट किया था उस डॉक्यूमेंट के अंदर लीडरशिप एससीओ की में मीटिंग में अंदर। तो इट वॉज अ काइंड ऑफ इंसल्टिंग फॉर इंडिया, बिकॉज देयर वॉज अ रेफरेंस ऑफ पाकिस्तान जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग जो बलूचिस्तान में हुई थी, बट देयर वॉज नो रेफरेंस ऑफ पहलगम अटैक। तो इट वॉज अ डिप्लोमेटिक फेल्यूर सिनप फॉर इंडिया बट डिप्लोमेटिक सक्सेस फॉर पाकिस्तान। एक और हेडलाइन देख लेते हैं। 10 killed as downpour inundates पंजाब सिटीज। मतलब पंजाब में मूसलाधार बारिश की वजह से जो है क्या हुआ, 10 लोग जाँ बहक हो गए। अब देखें यहाँ पर पीपल नहीं लिखा हुआ, जिस तरह हमने पढ़ा था कि 10 killed बिकॉज सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड। खामेनाई क्लेम्स विक्ट्री ओवर यूएस। खामेनाई जो है अमेरिका पर विक्ट्री का, मीन्स सक्सेस का, फतह का दावा किया। So these are the Dawn newspaper headlines. If you guys want me to keep you guys updated and keep abreast of latest news on daily basis and help you with explanation of these Dawn newspaper headlines, just let me know in the comment box. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.